Okay, today we are going to do a short story, Telltale Heart, The Telltale Heart. It is written by Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. It's true, yes, I have been ill and very ill. But why do you say that I have lost control of my mind? ये बात ठीक है कि मैं बहुत बीमार रहा हूँ, बहुत बीमार, लेकिन ये तुम क्यों कहते हो कि मैंने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है? I have lost control of my mind. Why do you say that I am mad? तुम ये क्यों कहते हो कि हम पागल हो गए? Can you not see that I have full control of my mind? क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि मुझे अपने दिमाग पर मुकम्मल कंट्रोल? Is it not clear that I am not mad? तो अभी तक भी क्या बात वाजे नहीं हुई कि मैं पागल नहीं हूं? Indeed, the illness only made my mind, my feelings, my senses stronger and more powerful. बेशक बीमारी ने तो मेरे दिमाग को, मेरी फीलिंग्स को, मेरे सेंसेस को और स्ट्रॉन्ग कर दिया है, और पावरफुल कर दिया. Okay, now listen carefully. In this short story, the narrator, the one who is narrating this story, that narrator is actually speaking. You must have read a lot of stories in which writer introduces the characters first. After introduction to the character, now writer moves towards dialogues. So first comes, most of the time, the introduction or the description of the character, and then conversation or dialogue starts. But here you will see, here you can see that there is no introduction of any of the characters. We don't know who is speaking. We don't know what is the gender of the speaker. We don't know what is the name of the character. But somebody is speaking, and being readers, we are listening, I would say, or reading his dialogues, his or her dialogues. So now, what does it mean? It means that it is the responsibility of the reader. It is the responsibility of the reader to collect information about the character. It is responsibility of the reader to build the character sketch of the narrator through the words which he is speaking. तो ये जो है वो रीडर जो है वो खुद डायलॉग को पढ़कर उसने अंदाजा लगाना है कि कैरेक्टर है कौन, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, वो है किस तरह का कैरेक्टर. तो आपने डायलॉग्स को बड़े तरीके से पढ़ना है. ओके, सो फार हमने जो पढ़ा है ये चंद लाइनें, इससे हमें ये समझ आया है कि जो कैरेक्टर है वो शुरू से ही हमें एक बात पर कन्विंस करना चाहता है. He wants to convince us that he is not a mad person. वो हमें ये बताना चाहता है कि मैं पागल नहीं हूं. I could hear sounds I had never heard before. I heard sounds from heaven and I heard sounds from hell. मेरी तो सुनने की ताकत जो है वो पहले से भी मजबूत हो गई है. मैं तो जो जन्नत में हो रहा होता है उसको भी सुन लेता हूँ, और जो जहन्नम में हो रहा होता है वो भी सुन लेता हूँ. Listen, listen. I'll tell you how it happened. मैं तुम्हें बताऊंगा ये सब कैसे हुआ. क्या कैसे हुआ अभी पता चल जाता है. You will see, you will hear how healthy my mind is. तुम देख लोगे कि मेरा जो दिमाग है वो कितना
हेल्दी है। ये पिक्चर देख रहे हो आप? यस सर। इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? ये क्या है? बूढ़ा आदमी सर, यही कि एक आदमी इस तरह से लेटा हुआ है कि वो बीमार लग रहा है। हाँ, और बूढ़ा आदमी है, ठीक है। यस सर, यस तस्वीर सर। से ये पता चलता है कि कोई बूढ़ा आदमी है इसमें, ठीक है। It is impossible to say how the idea first entered my head. ये मुमकिन नहीं है कि मैं बताऊं कि पहली दफा मेरे दिमाग में वो ख्याल कैसे आया। कौन सा ख्याल? सुनते रहिए। There was no reason for what I did. मैंने जो किया उसकी कोई वजह भी नहीं थी। I did not hate the old man. The old man. मैं बूढ़े आदमी से नफरत नहीं करता था। I even loved him. बल्कि मैं तो उससे मोहब्बत करता था। He had never hurt me. उसने कभी भी मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाई। I didn't want his money. मुझे उसके पैसे भी नहीं चाहिए। I think it was his eye. मेरा ख्याल है ये उसकी आंख थी। His eye was like the eye of a vulture. उसकी आंख वल्चर की तरह थी। वल्चर कहते हैं गिद्ध को, जो मुर्दे खाने वाला परिंदा होता है। जब लाश पड़ी होती है तो गिद्ध आकर उस लाश को खाते हैं। The eye of one of those terrible birds that watch and wait while an animal dies. उसकी आंख वल्चर की तरह थी। उसकी आंख उन खतरनाक खौफनाक परिंदों की तरह थी कि जो देखते हैं और इंतजार करते हैं जब कोई जानवर मर रहा होता है, एंड देन फॉल अपॉन द डेड बॉडी एंड पुल इट टू द पीसेस टू ईट इट। फिर वो डेड बॉडी के ऊपर जो है वो हमला कर देते हैं और उसको टुकड़े टुकड़े करके खा जाते हैं। When the old man looked at me with his vulture eye, a cold feeling went up and down my. जब वो बूढ़ा आदमी मुझे अपनी आंख से देखता था तो मेरी कमर में एक सर्दी की लहर दौड़ जाती। Even my blood became cold. मेरा खून भी ठंडा हो जाता। And so I finally decided I had to kill the old man. I had to kill the old man. तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे उस बूढ़े को मारना है। And close that eye forever. और उस आंख को हमेशा के लिए बंद कर देना। अच्छा बताएं क्या रीजन है बूढ़े आदमी को मारने का? सर उसकी आंखें डरावनी। उसकी आंख। उसकी आंखें। उसने पहले ये कहा कि मैं पागल नहीं हूं। फिर उसने कहा कि अगर मैं पागल होता तो मैं ये वाला काम ना करता। कौन सा वाला काम? बूढ़े को मारने का। और बूढ़े को मैंने क्यों मारा? मुझे बूढ़े से कोई दुश्मनी नहीं थी। I didn't have any interest in his money. I didn't have any hatred for him in my heart. The only reason I killed him was his evil eye, his vulture eye. So you think that I am a mad? तो तुम समझते हो कि मैं पागल हूं? A madman cannot plan. पागल आदमी प्लानिंग नहीं कर सकता। But you should have seen me. लेकिन तुम मुझे देखते तो सही उन दिनों में। किन दिनों में? जिन दिनों में मैंने उसको मारा है। During all of that week, I was as friendly to the old man as I could be, and warm and loving. उस पूरे हफ्ते में मैं उसका इतना ज्यादा दोस्त था जितना हो सकता, और बड़ी गर्मजोशी और बड़ी मोहब्बत के साथ मैं उसको मिलता रहा हूँ। Every night about 12 o'clock, I slowly opened his door. आहिस्ता से दरवाजा खोलता रात 12 बजे। And when the door was opened wide enough, I put my hand in. जब दरवाजा काफी खुल जाता तो पहले अपना हाथ अंदर दाखिल करता। Then my head, और फिर सर। In my hand I held a light. मेरे हाथ में एक लाइट होती, covered over with a cloth. एक कपड़े से ढकी हुई लाइट, जैसे लालटेन है ना उस पर कपड़ा कराया हुआ। So that no light showed, ताकि जो लाइट है वो नजर ना आए। And I stood there quietly, और मैं वहां खामोशी से खड़ा रहता। Then carefully I lifted the cloth. फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कपड़े को लालटेन के ऊपर से हटाता। So that a single thin small light fell across it.
दैट आई, ताकि एक बारीक सी शुआ जो है वो रोशनी की निकले और वो छोटी सी शुआ जो है वो उसकी आंख पर जाकर पड़े। फॉर 7 nights आई डिड दिस थिंग, 7 रातें मैं ऐसे करता रहा। क्या करता रहा? आहिस्ता से जाता, दरवाजा खोलता, पहले पहले अपने हाथ को अंदर करता, उस हाथ में लालटेन होती, फिर अपने सर को अंदर दाखिल करता। हर रात 12 बजे मिडनाइट, ऑलवेज द आई वाज क्लोज, और हमेशा आंख बंद हो। सो इट वाज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू द वर्क। तो फिर मैं वो काम नहीं कर सकता था जिसके लिए मैं जाता था, क्योंकि आंख बंद होती। But it was not the old man I felt I had to kill. It was the eye, his evil eye. क्योंकि अब वो बूढ़ा आदमी नहीं था जिसको मैं मारना चाहता था। बूढ़े आदमी से तो मुझे कोई मसला ही नहीं था, मेरा उसने क्या बिगाड़ा था? वो तो बहुत अच्छा आदमी था। मेरी दुश्मनी तो उसकी आंख के साथ, his evil eye, उसकी evil आंख के साथ। Okay, now question for the whole class. वाकई क्या वो पागल है? अगर वो पागल होता तो क्या वो इतनी अच्छे तरीके से मंसूबाबंदी करता? ओके जी, फॉर 7 nights आई डिड दिस, 7 रातों तक मैं ऐसे करता रहा। आंखें उसकी बंद होती थी, मुझे उनसे, बूढ़े से तो कोई दुश्मनी नहीं थी। And every morning I went to his room and with a warm, friendly voice I asked him how he had slept. हर रोज सुबह सुबह मैं उसके पास जाता, रात को मैं प्लानिंग करता, लाइट लेके घर जाता और वो सो रहा होता। सुबह सुबह मैं जाता उसके कमरे में, उसको बड़ी मोहब्बत से मिलता और बड़ी फ्रेंडली वॉइस के साथ मैं उससे पूछता कि कैसे हो बड़े मियाँ। He could not guess that every night just at 12 I looked in at him as he slept. और उस बेचारे बूढ़े आदमी को पता ही नहीं चलता कि मैं हर रात 12 बजे आता था उसके पास और देखता था। The 8th night I was more than usually careful as I opened the door. 8वीं रात तो मैं पहले से भी ज्यादा केयरफुल था। The hands of a clock moved more quickly than did my hand. भाई घड़ी की सुइयां जो हैं वो तेज चलती हैं, मेरी हरकत उससे भी स्लो थी। Never before had I felt so strongly my own power. इससे पहले मैंने कभी भी अपनी ताकत इतनी महसूस नहीं की। I was now sure of success. अब तो मुझे ताकत का यकीन था। The old man was lying there, not dreaming that I was at his door. बूढ़ा आदमी जो है वो वहां लेटा हुआ था और उसके ख्वाब में भी नहीं था कि मैं दरवाजे पर हूं। Suddenly he moved in his bed. अचानक वो अपने बेड में मूव हुआ। You may think I became afraid. तुम समझोगे कि मैं डर गया, but no. The darkness in his room was thick and black. उसके कमरे में जो डार्कनेस थी वो थिक थी, बड़ी गहरी थी और बड़ी ब्लैक थी। I knew he could not see the opening of the door. मुझे पता था कि वो दरवाजे को खुला हुआ नहीं देख सकता। I continued to push the door. मैं दरवाजे को धकेलता रहा, slowly, softly. I put in my hand. मैंने अपना सर दाखिल किया, हाथ दाखिल किया, with the covered light, और लाइट जो है वो कवर थी। Suddenly the old man sat straight up in bed and cried. अचानक बूढ़ा आदमी अपने बेड में बैठ गया और उसने चिल्लाकर पूछा, Who is they? कौन है? Who is they? कौन है यहाँ पर? Oh my God! अब आप सस्पेंस स्टोरी का फील कर सकते हैं कि बूढ़ा आदमी जो है वो घबरा रहा है और वो पूछ रहा है कि कौन है दरवाजे पर।